Hello students, so we have some updates coming for you, though they are proposed updates for two board examination to be conducted from the year 2026. So the students who are in present class 9th, it is mainly for them, but obviously all need to know because this is going to be the policy henceforth. So CBSE has come out with a circular proposing two board examinations from class 10th for class 10 from 2026. Let's understand what exactly they mean, and it's a proposed policy not yet finalized, so let us see. So two board exams, आप कहेंगे एक ही भारी पड़ता है दो दो, चलिए क्या क्या है समझते हैं. So the latest change is twice a year. Now what the board has proposed that in a year once you take up your final, 1 February में board होगा, which will end by March 6th, February 17th they are starting, and second May 5th. So a student can opt for both boards or only one board, or can take improvement exam in the second board if they are not getting good marks, but henceforth no compartment and supplementary. These are the two boards. So let us understand them very clearly. So this is includes reducing the exam duration of offering a two-tier system for central subjects. Reforms आएंगे, अभी ये नहीं है कि duration कम किया है. Changes with the national education policy guidelines. So this is as per NEP which they are doing it. Now key changes. So on Tuesday means the date they were released by draft of new policy will be conducted twice. Now this is proposed in one or both the boards. So either you can appear in February, and if not satisfied you can appear in May. But if you don't appear in February then you can only appear in May. और अगला चांस कब आएगा? वो अगले साल फेब में आएगा, और वो भी वही सिलेबस जो अगले साल का होगा. So that is what it is. If they opt for second board they can skip the subjects they do not wish to continue further. ठीक है ना? Now if they opt for the second board exam, इसका मतलब ये है कि once you are taking the second board exam, ठीक है ना, so they can skip the subjects they do not want to continue further. ये थोड़ा सा यहाँ मतलब जो है इसका कि जो सब्जेक्ट्स आप नहीं चाहते सेकंड में ऑप्ट, आप स्किप कर लीजिए. आपने फर्स्ट में 3 दिए, अच्छे लग रहे हैं, 5 में से अब आप 2 ही देने चाहते हैं, यू कैन अपीयर फॉर दैट. वन ऑफ द टू बोर्ड एग्जाम विल सर्व एज एन इम्प्रूवमेंट एग्जाम. तो ऑब्वियसली एक इम्प्रूवमेंट होगा, जनरली सेकंड वाला. Now also produced duration from 30. ये कह रहे हैं कि बहुत लंबा चलता था बोर्ड, तो इन्होंने गैप कम कर दिया, तो तुम्हें छुट्टियां कम मिलने वाली हैं. जो बहुत छुट्टी मिलती थी ना, वो छुट्टी कम कर दी है. The first phase is between February 17 and March 6. डेट शीट भी दे दी है. Second May 5 and May 20 के बीच. So these are the proposed date sheets. Second, student will get 1 to 2 day of gap as compared to 5 to 10. So in some of the major papers गैप थोड़ा ज्यादा होगा, अदरवाइज जनरली जो डेट शीट है उसमें गैप इतना ही है. आई शो यू द डेट शीट ऑल्सो. रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड बाय अप्रैल 20, while results for the second phase will be declared by June 30. तो जब रिजल्ट आ जाता देन यू कैन डिसाइड कि हाँ मुझे अपियर होना है नहीं. और कई बार तो पेपर देख के भी पता चल जाता अच्छा नहीं हुआ, हम अपियर होंगे, और कई बार हम पेपर ही नहीं देंगे तो अपियर होना ही है. सो अब मान लो आपका मैथ्स अच्छा नहीं हुआ या आप मैथ्स तैयार नहीं हो, फर्स्ट नहीं देके आप सेकंड में दे दो. सो दैट इज व्हाट इट इज. अब 11th का एडमिशन क्या है, अगर आपने फर्स्ट दे दिया और क्लियर हो गया, उसके बेसिस पे 11th में एडमिशन हो जाएगा. क्लियर नहीं भी हुआ तो प्रोविजनल मिल जाएगा, जब आप इसको क्लियर कर लोगे तो हो जाएगा. अब इसको भी नहीं करोगे तो फिर 11th में कैसे एडमिशन मिलेगा. सो मार्च 9 तक just a minute, till March 9th you have to give your opinion. तो आप CBSE की वेबसाइट पे जा सकते हैं और मार्च 9 तक अपना ओपिनियन दे सकते हैं अगर कोई सजेशन या आपका ऑब्जेक्शन है तो. सो कुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, दैट इज व्हाट इट इज सजेस्टिंग. टू करिकुलम, अब ये आगे है, इसके बाद CBSE आगे इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, नॉट दिस, फ्रॉम 2027 टू करिकुलम, जिसको आगे साइंस लेनी है तो एडवांस्ड मैथ्स एडवांस साइंस पढ़ो 9th 10th में, जिसको ह्यूमैनिटीज लेनी है वो एडवांस सोशल साइंस पढ़े.
सो इससे क्या होगा कि आप 9th 10th में टफ पढ़ लेंगे जो आपको 11th में लेना है, इफ यू आर डिसाइडेड। नहीं है तो फिर जो लेना है लो। सो दैट इज व्हाट इज, और ये बहुत अच्छा है, ये प्रपोज्ड इसलिए अच्छा है क्योंकि 11th की साइंस टफ होती है। स्टूडेंट 10th में इजी साइंस और मैथ्स पढ़ता है, फिर 11th में उसको डिफिकल्टी होती है, तो 10th में वो ऑप्ट करके इंट्रोड्यूस कर लेगा तो इट विल बी इजी फॉर हिम। सो गवर्निंग बॉडी हैज ये 2 ऑप्शन करिकुलम फॉर ये, ठीक है ना। ये अभी आएगा, नॉट अभी आया है, 2027 से आएगा वो वाला। सो नेक्स्ट सेशन, सो 26-27 में आएगा फ्रॉम 28, मतलब बोर्ड ये। तो अभी जो 25-26 9th है वो जैसे 10th है नॉर्मल चलेगा। जो 2026-27 में बच्चे अभी जा रहे हैं आगे और बोर्ड देंगे तो उनके लिए ये लागू हो जाएगा, जो बच्चे 2028 में। तो अभी जो 8 से 9th में जा रहे हैं, सो देन दे विल गेट इट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, ठीक है। दिस चेंज विल हेल्प टू इंप्रूव। तो देखो 2028 का जो बोर्ड होगा उसमें जब बच्चे 9th में से 10th में जाएंगे, देन दे विल गेट दिस चांस। सो कॉम्पिटिटिव के लिए बेटर, दैट इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट क्या है, व्हाई दिस चेंज? स्टूडेंट्स कैन चूज बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एडवांस्ड लेवल अपने हिसाब से, और एनसीईआरटी 2 टेक्स्ट बुक्स बनाएगी इसके हिसाब से, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि क्लास 10th के लिए एडवांस लेवल विल इंक्लूड एडिशनल कंटेंट एंड बोर्ड एग्जाम में इंक्लूड एक्स्ट्रा क्वेश्चन और सेपरेट पेपर्स फॉर एडवांस लेवल। तो ये एक्स्ट्रा और सेपरेट ये सब प्रपोज्ड है, दे विल बी फाइनलाइज्ड मोर और लेस। तो 2 पेपर अलग अलग आएंगे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट्स यू चूज, बेसिक लेवल या एडवांस लेवल। सो 2 करिकुलम इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 9 2026-27 में। तो जो अभी 8th में आएंगे, जब वो 9th में आ जाएंगे तो उनके लिए ये करिकुलम लग जाएगा। 2028 में 2 लेवल बोर्ड एग्जाम आ जाएगा। एनसीईआरटी विल रिलीज न्यू टेक्स्ट बुक बाय 26-27। दिस इज विच इज ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। सीबीएसई जो ट्वाइस ए है आसान करेगा एंड दे विल टेस्ट मोर ऑन कोर एबिलिटी, सब्जेक्टिव कम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, रोट लर्निंग पे नहीं जाना। शुड पास विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट एंड टू रिड्यूस दे विल हैव द ऑप्शन टू टेक बॉयज ट्वाइस एग्जाम। तो उन्होंने कहा कि 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी हैं आप चूज करते हैं, आपको 3 अच्छे से प्रिपेयर्ड, 1 दे दीजिए, फिर दे दीजिए, आपका स्ट्रेस कम होगा। नहीं अच्छा होता तो फिर रिपीट कर सकते हैं। तो तुम्हारे स्ट्रेस की पूरी चिंता है। वन एज द मेन एग्जामिनेशन, अनदर एज इंप्रूवमेंट अगर नीडेड है, कंपल्सरी नहीं है, पर हाँ एक में तो बैठना पड़ेगा। अब Y2 लेवल्स, ये जेई वगैरह जो बच्चे देते हैं उनको बहुत डिफिकल्टी आती है, तो इसीलिए ये प्रपोज हुआ है कि आगे अभी नेक्स्ट ईयर तो खाली 2 बोर्ड है, उसके आगे से जो है 2 लेवल भी आ जाएंगे। सो दैट इज व्हाट विल रिड्यूस स्टूडेंट्स डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग सेंटर। कोचिंग जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, स्कूल में ही पहले से ही आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टॉपिक्स पढ़ लेंगे। इन्होंने क्लास 10th में 2 लेवल मैथमेटिक्स दी थी, स्टैंडर्ड और ये, लेकिन इसमें ना मेरे हिसाब से बहुत कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि सिलेबस सेम था। पेपर्स का लेवल चेंज किया, पर अब सिलेबस भी चेंज करेंगे, चैप्टर्स भी चेंज करेंगे, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो बोर्ड एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, और ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल अभी वेरी नहीं करता। तो बेनिफिट हुआ है, जो लोग आगे मैथ्स नहीं चाहते वो अपना बेसिक लेके छोड़ देते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव चाहते हैं वो एडवांस लेते हैं, ठीक है ना। बट नाउ वो यही चीज साइंस और उसमें ला रहे हैं विद ए मोर ब्रॉडर थिंकिंग, राइट, कि हम एडवांस साइंस पढ़ाएं और जो बच्चे लेना चाहते हैं देन दे कैन टेक इट, राइट। तो दैट इज व्हाट दे आर इंट्रोड्यूसिंग इट। तो ये पॉलिसी जो थी ये था, दिस इज व्हाट द पॉलिसी वाज टू बी कंडक्टेड, ठीक है ना। और ये एनईपी है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। नाउ व्हाट इज, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। दिस इज आई डिस्कस विथ यू 15 फेब से 18 मार्च, ये
अभी 2025 बता रहे हैं, इसको छोड़िए। तो इन्होंने ये बताया, ये अभी 10-12 का चलता है, 32 दिन तक ये एग्जाम चल रहे हैं और ये 38 डेज तक चल रहे हैं, इतने सब्जेक्ट्स ऑफर्ड, ये प्रेजेंट वाला है। अब मैं इनका प्रपोज दिखाता हूं। 26 में इन्होंने 17 फेब से इतना फर्स्ट फेज बोला है उसको, और ये सेकंड फेज, और इन्होंने इसको 34 डेज में बोला हम खत्म कर लेंगे। दिस इज नेक्स्ट ईयर, जो आपके लिए होगा, जो अभी 9th में है। स्टूडेंट्स हु आर इन 9th, फॉर देम दिस इज प्रपोज्ड। सेकंड विल बिगिन ऑन फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर दिस। नाउ 12th का एक ही एग्जाम है अभी, दे हैव नॉट गिवन 2, सब्सिक्वेंटली इट विल आल्सो बी 2, so it is expected that about this many will appear, both the examination will be now except science। देखिए मेन सब्जेक्ट है साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। अब इसको ध्यान से समझिए व्हाट दे हैव डन। इन द प्रपोज्ड ड्राफ्ट दे इंक्लूडेड हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट। अभी तक हिंदी ऑप्शनल होती थी। What they have done, they included Hindi as a main subject, and there was big uproar. States like Karnataka, Tamil Nadu, Punjab, where they don't study Hindi, how will they appear? So now CBSE has come with an addendum कि they have additionally given information that this is for this year, no change, you can opt for what you are doing. But subsequently उनके दिमाग में यही है। So keep in mind they NCF में 3 लैंग्वेज है क्लास 9, 10th, 8th में, और 11th, 12th में 2। So they want you to study 3 languages out of which 2 should be Indian language। तो हिंदी इसीलिए उन्होंने कंपलसरी कर दी। दूसरे ग्रुप में रीजनल, फ्रेंच, स्पेनिश, संस्कृत ये रखा है, और इसमें AI या जो एक्स्ट्रा है वो रखा है। सो एग्जामिनेशन ऑफ मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी विल बी ऑन ए फिक्स्ड डे, मतलब इसके डेज फिक्स्ड रहेंगे। लेकिन जैसे अब कोई रीजनल लैंग्वेज है, इसको 1 डे में कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है 2 to 3 डेज देंगे। अब इसका मतलब समझो, सपोज यू हैव AI एंड यू ऑल्सो हैव ए स्पेनिश आउट हियर, तो वो ये देखेंगे कि आपका कोई क्लैश ना आ जाए। सो दे विल गिव यू अ चॉइस, अ कॉम्बिनेशन कि व्हेन यू वांट टू अपीयर। ये अलग अलग 2 से 3 दिन में होंगे, एंड वंस यू टेक द एग्जाम, पेपर वापस ले लिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी टेकन बैक फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, नॉट फॉर अदर्स। स्पेनिश एक ही दिन में होगा, लेकिन हाँ जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं और ऑप्शनल CBSE में बहुत सारे, वो वाले। सो रीजनल विल बी डन इन 1 डे, रीजनल को भी 1 डे में करेंगे। रिमेनिंग विल बी कंडक्टेड 2 to 3 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द चॉइसेस। Like data science examination will be conducted 2 to 3 days. So it depends what you are taking. और जो question papers हैं will be taken back once the examination is over. This is again proposed. So let's see, English compulsory, communicative और core, हिंदी A और B, science, mathematics ये तो main subjects कर दिए। Regional, अब ये languages है, गुरुंग, संस्कृत, तमिल, गुजराती, मणिपुरी। Now why there was an uproar, I think Punjabi was taken away from this. Now when Punjabi was removed, they had a big problem कि हम हिंदी कंपल्सरी पढ़ते नहीं, और यहाँ से आपने इसको हटा दिया है। So that was one problem when this thing was there. Though changes will come, this is a proposed thing. And then elements of bookkeeping, marketing, ये बहुत सारे सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर, ब्यूटी, वेलनेस। कई बच्चों ने तो सुना ही नहीं होगा क्योंकि स्कूल देते नहीं। कर्नाटिक म्यूजिक, हिंदुस्तान, पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो CBSE में ऑप्ट कर सकते हैं आप लोग, पर वो अभी तक नहीं है। बट नाउ दे मे अलाउ यू एंड स्कूल विल टेक इट अप। अब ये डेट शीट है 10th की, तो 17th को सबसे पहला मैथ्स ही रखेंगे, फिर 18th को कोई एग्जाम नहीं, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट फेज, मतलब डाटा साइंस या AI यहाँ एक ऑप्शन, फिर यहाँ नो एग्जाम, फिर सोशल साइंस, 4 दिन का गैप मिल गया। हॉलीडे, नो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, फिर यहाँ ऑप्शनल पेपर, यहाँ नो एग्जाम, फिर यहाँ साइंस दे दिया, 2 दिन का गैप है। अब ये ऐसे दे रहे हैं कि भाई कोई ना कोई बच्चा जो अपना पेपर देना चाहे बीच में वो फिट किए। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, देन दे गो ऑन टू से 27 को हिंदी होगा, नो एग्जाम, हॉलीडे, यहाँ इंग्लिश हो गया, ये रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो AI डाटा साइंस है उनका, then it's a holiday and no exam. Other languages exam over यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोविजनल डेट शीट रखी है उन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्स के लिए, वही जो इतने सारे हैं उनमें से किसी को रख लेंगे। बट मोर और लेस यहाँ पे ज्यादातर बच्चे फ्री हो जाते हैं। नाउ दिस इज ऑल।
तो ये सारा जाएगा और रिजल्ट ये 20th अप्रैल होना चाहिए, मई नहीं होगा, ये गलती है, 2004 होना चाहिए, सॉरी रिजल्ट क्लास 12 है, माय बैड। तो यहाँ पे एग्जाम यहाँ पे ओवर हो गया, ये खत्म है एंड दिस इज ऑल गॉन। लेट्स सी व्हाट वाज देयर, या लेट मी हैव, ये क्लास 12th के सब्जेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे, माइनर सब्जेक्ट्स, मेजर, सो दिस इज क्लास 12th पेपर्स आर गोइंग ऑन। तो 12th का भी हम कुछ खास डिस्कस नहीं कर रहे, ये 12th के एग्जाम से वहाँ 10th के थे जो मैंने डिस्कस किए, और ये 12th की डेट दी हुई है। तो अब हम आ जाते हैं रिजल्ट ऑफ क्लास 10th बाई 2004 आ गया। अब एलओसी का मतलब क्या, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। अब आपका एलओसी तो सितंबर में भरा जाएगा 9th में। सपोज यू टुक ए सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले लिया, स्पेनिश, और जब फर्स्ट एग्जाम हुआ आपने उसको नहीं दिया, अब आपको लगता है कि सेकंड एग्जाम में मुझे चेंज करना है, तो आपको एलओसी चेंज करने देंगे, यू कैन चेंज दैट एलओसी एंड यू कैन अपीयर फॉर फ्रेंच। आपको लगता है मैं 2 महीने में फ्रेंच कर लूंगा, मैं फ्रेंच दे सकता हूं। बट इफ यू फिल्ड योर एलओसी विद स्पेनिश एंड टुक द फर्स्ट एग्जाम, देन इन सेकंड एग्जाम यू कैन नॉट चेंज। गॉट इट? सो अगर आप फर्स्ट एग्जाम नहीं लेते तो आप कोई सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं सेकंड में, बट अगर फर्स्ट में आपने एग्जाम दे दिया, यू कैन नॉट चेंज दैट एलओसी। सेकंड में भी मैथ्स पहले, फिर वही सोशल साइंस एंड ऑलमोस्ट सेम शेड्यूल गोज, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एंड दैट इज हाउ इट गोज आउट, राइट? सो रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड बाय ये अगेन सप्लीमेंट्री 12th के लिए, क्योंकि 10th के लिए तो 2 हो गए, सप्लीमेंट्री होगा ही नहीं। सप्लीमेंट्री का मतलब इंप्रूवमेंट पेपर या कंपार्टमेंट पेपर, सो दैट इज नॉट देयर फॉर 10th एंड दिस इज रिजल्ट डिक्लेरेशन will remain same in this. For the sports students, they have to appear in any of the 2 board exams and no separate exam will be conducted. और exam center fixed रहेगा for first and second to the same center shall be there. LOC will be completed by September. After LOC, no change in the subject will be allowed. This will be considered only in the second exam अगर आप appear नहीं होते. Filling will be compulsory. Option for both exam will be obtained in LOC. मतलब दोनों का ऑप्शन ले लेंगे. No new name will be added to LOC for second. For the second exam यहाँ लिखा है will be made live immediately after the declaration 20th April. Now all schedule will be fixed and there will not be any deviation. Exam fee will be enhanced अगर आप second दे रहे हैं. First second examination will also act as supplementary and this. एंड वेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन आफ्टर द रिजल्ट आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे कर रहे थे। और इसमें कुछ खास है नहीं। फर्स्ट एग्जाम के बाद कोई पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, फाइनल सेकंड के बाद ही होगा सबका, बिकॉज सम में अपीयर, सम में नॉट अपीयर, सो फाइनल रिजल्ट विल बी दैट। सो फर्स्ट एग्जाम डिजी लॉकर में आ जाएगा आपके एंड देन यू कैन टेक एडमिशन, और जो पासिंग डॉक्यूमेंट्स हैं विल बी इशूड आफ्टर सेकंड। ठीक है, प्रैक्टिकल और ये एक ही बार होंगे, 2 बार प्रैक्टिकल नहीं होंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स क्वालिफाइड कुड बी अलाउड इन 11th बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेकंड एंड देयर एडमिशन इज फाइनलाइज्ड। ठीक है, ए स्टूडेंट क्वालिफाइंग फॉर 5 सब्जेक्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पास। तो 5 में पास होना आपको अलाउ कर देंगे, दैट इज इट। Students who fail to pass 1 to 5 subjects in first will be placed under improvement category and will be allowed to appear in examination held in July 2026. ये थोड़ा सा कुछ एरर है, सेकेंड एग्जाम मतलब जो वो होगा, there's some error out here. Additional subject will not be permitted. This means that after class 10 will not be allowed in standalone subject. मतलब एक ही सब्जेक्ट में अपीयर होने के लिए अलाउ नहीं करेंगे आफ्टर पासिंग क्लास 10. सो इफ यू पास देन यू कैन नॉट डू दैट, एक सब्जेक्ट में अपीयर हो। इफ ए स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड पास बाय रिप्लेसिंग 6-7 सब्जेक्ट विल बी एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट इन द फेल्ड सब्जेक्ट ओनली फॉर नेक्स्ट टू एग्जामिनेशन फ्रॉम द फर्स्ट। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट, इसको समझिए, इज डिक्लेयर्ड पास बाय रिप्लेसिंग 6 या 7 सब्जेक्ट, तो वो इंप्रूवमेंट खाली फेल्ड सब्जेक्ट में दे सकता है नेक्स्ट टू, मतलब या तो अभी इस वाले में, नहीं तो उसके आगे जो एग्जाम होगा उसमें। सो दैट इज व्हाट दिस लॉ सेज। आफ्टर सबमिशन ओनली सेकेंड एग्जामिनेशन और
ऑप्ट नॉट टू अपीयर, तभी हो सकता है, राइट? तो ये फीडबैक के बाद रिवाइज होगा एंड फाइनली आएगा। बट आप मान के चलिए 80 to 90% इट इज गोइंग टू बी सेम। सजेशंस लिए जाते हैं, इंप्लीमेंट बहुत कम होते हैं, हार्डली दे आर इम्प्लीमेंटेड। दे हैव मेड अप देयर माइंड, ये दिखाने के लिए ज्यादातर लेते हैं कि हाँ हमने सजेशंस लिए, बट बहुत कम चेंज होता है। सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू फॉर स्टूडेंट्स, यू कैन कॉल अस और राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। मैं अपना यहाँ हमारा नंबर भी दे देता हूँ, ताकि अगर किसी को कोई डाउट हो, यू कैन ऑलवेज आस्क us about this policy and later on NCF आ रहा है, तो जो बच्चे अब 8 to 10th में होंगे उनको सब्सिक्वेंटली 3 लैंग्वेज पढ़ना है और 11th 12th में 2 लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट इज व्हाट इट इज एंड एज मोर अपडेट्स कम वी विल apprise you about that. This is Keshav Agarwal signing off for the time being and will soon come with any updates. Thank you.